Go. Kargili, Mimalangias, Sharbalangias, Juno Choptong, Pomuputsa Langias, Samala Ju Salam, Tenenga Dring, Kargili, Tene Zongi Congress, Las Consne, Tene Mimang Same Dunla, Jaltenju, Tenenge Samasana to Jechajun, Tene Kargila Juxkaningati, Achuno, Mada Kargilingata, Palangias, Media Palangas, Denica, Skudazats, two things that you. Nga mapsat yul samena tus miun yoches pejaste katsama laptop ganemiru inna zongir sondus chospen mimangse dula jala jate mimangse dula spera chingisik juala tus beches pejaste katsama laptop ganemiru tepia taninga chappa pargute taninge jua chingisik tang taninga ta I talani MP election topika spera chingisik kurtenga jaktinju sombasang langes taninga tan sama kemket panok ta jak misumjik mane manus tene MP election mo tene ngata la sipia kagena ngata zong le tene Kargil zong pia ngata same ngata yupat same pia ma khakjen inju mutani ngata logis na jana la logis na jina tene ngata stop sala zapin BJP ya la si ton sagun ma shuk tanya po ma laksmo tanya po ta gyagari changme sang zumra chinno hale gyagari parliament ni na lok sabha changme sang skatak chan changme sang zumra chinmo no kagena 각자 자라노 까베는 가다 디스커션 저도 나라 유리 돈 사람마다 쿠르체시 데 스카프스 테가다 요토노 멤버 파르멘트 유테레 소마상 뚱이 사마르만에 트랜스포멀루스 테피앙가다 드레스 마션데 가다 소마사고 슈드 가다 수직 테가 칼고 사게 예 kargili memang langias dene diri tensa tusina kargili memang langias ma kengo samajuk sabju ati junu kyopto ngati putsa pomo samama yutane toga tasama rande yarges ate chikasa chikyala watai IC nangata dasa tuku samade no ngata engineering nangata IT nangata tuku mangko lobjong sata doctor nangata mangko sata no doctor mangko yutot kya sport na sik sata ngata taekwondo zera chos ngata judo zera chos salias ma mangko jena ngati kargili jawan potong putsa pomo changma dring kargili mingbo ngata mingchan ta chue skill masat ladak se open ngata mane mingchan chue skill kya kale skill pasang ye pura lewa chintani kargili mimans bani तुक्सम्मा क्या चलना साला जाते कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी तेने कांग्रेस पार्टी हमेशा लद्दाख से मीमांसी जब शी जुचु से नगाता चंग खसर जिंगता बरमेजु उसके पास अंगा पूरा रे वाला तेने करगिल मीमांग लगे संवेले तंजीम संवेंगे त्योंगे तुझे चे जुचु जिन दांग तेने गा करगिल गाता है तंजीम खचिगा गाता चुलुक से गाता उसके मुल्ला गा जलचे से मा स्काप जंपोतो तेने गे गोते खोंसमा तुझे चे जुचु जिन न्या समा तुगला स्काप समा जंपो साला जात के pasang tenenge tena riwa chenjuk meka tene congress party nya chame rara vote rinchen salinju tenga tang sama laktu tamste alamdu zate kargil bunga ta skel la khera jaches kargil demand gun chiji gonna changa ta ka namti demand do ka ma khachan no mata haj la stotan guni khaj la stotan gun ma objal nam gun khale mata guntus da alias ko doshes ya yar list la ngata stotan baria khajula skol doshes baria jammu skol doshes ju kebe namtu thai tonsago kargil zone pia ma khachan ni na kargil ngata namtu tamsi stotan song tang korean tang chisa lagu ngata phanjino yo ma issue chenma jeno nya sam skap sala zadna nge mane stondus tanya po mig na khni ka ngata tonsago jaga je parliament ne purchase ministry of civil aviation education do director general of civil aviation ni daftar na song tinga ngata juju zeno kai ka shugu mangyen ju to no ayu ngata stondus zata stone de ngata gen la ke pushat kya omugula laza piga pinches skap zendo puta gula ngata lazda skap zendo etena zon ngata salansi to chi gindo donpane to chi cho zat bushidu khamde to da chi zat bushidu te tsame to be ngata tsirtsirla ene kargili ngata chimigula tia zatu kargili tanzim gun yapo thite niranguni khadaram stonika niranguni chi ngata memorandum ji sala number 1 2 3 4 chi zatu draz ngata chi zat bushidu zanskal ngata chi zat bushidu I tsama district ngata kazu chi ngata changlas zat bushidu mimas goa kura zate mimas da tinjikta chimigula tinjikta zago ngoshes guna sporik sal jikta chun gula yasha chimjikta tene ngata mijik in pan pan nya hamesha junos pinju tsame sang ngal ngata kharchano imandari ne bonta changla zachiju insaniyat pun ngata changla zachiju tene mig na shni ngata chiji ngata azat busna nya tsama local police yang wada chen nya tsama nya mayus mani mecho yang ngata tsama kargili ton sam shet shuk tangem po ngata yagari zomra chenena zomra yopmena ngata pura zachelo ne riwachun kargili meman lange sangme ra wodrin chanbo ne ishuin ne chapula ne dua chot ne tsama nga sanin sande ma riwachun pura riwara ne tsama congress party ka
Magyalajik Salen something, Yelavachim, somebody. नमगियाल साहब, आपको इस बार जो है मैंडेट आप लोगों को मिला सर, इसमें बहुत जदोजहद हो गया करगिल का, लेकिन मैंडेट आपको देने की वजह से सर करगिल में इंडिपेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम हाजी पर, क्योंकि कांग्रेस का जो करगिल में भी कांग्रेस का बहुत यहाँ पे वोटर्स है सर, वो यहाँ पे इस बार जो है इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या कर रहा है, हानिफा जान साहब को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनसे मिला था नीचे पीछे डे में, मगर जाती तौर पर मैं उनसे नहीं जानता हूँ। इंडिपेंडेंट किस तरह से आगे चल रहा है, वो किस तरह से कर रहे हैं, मुझे उस पर कुछ कोई टिप्पणी नहीं करनी है। और बीजेपी भी क्या कर रही है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने उसूलों पे चल रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी का इश्यूज क्या है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से खित्ते करगिल के भलाई के लिए, खित्ते करगिल की तरक्की के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उन्हीं बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो कोई भी मुश्किलात नहीं, हम पूरी ताकत के साथ, जोर शोर के साथ मैदान में खड़े हैं, उतरे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके। हमारे सारे यहाँ भाई बहन यहाँ पर शबीर साहब हैं, मंजूर अखवन साहब हैं, हमारे फॉर्मर काउंसिलर जनाब लियाकत साहब हैं, हमारे टाशी शोसबल जी हमारे लद्दाख के मशहूर सिंगर भी, हमारे पुराने वर्कर हैं, सब बैठे हैं। मैडम परवीन जी हमारे महिला के, हमारे करगिल के बहुत बड़े हमारे लीडर हैं। और हमारे सुभान जाफरी साहब, सबको मालूम है। तो पूरा हमारे जितने भी लीडर साहबान यहाँ पर जो मौजूद है आज की तारीख में, आज के समय में, पूरी ताकत हम झोंक रहे हैं, पूरी ताकत के साथ करगिल के अवाम के बीच में जाके करगिल के भलाई के लिए, करगिल को आगे ले जाने के लिए हम मजबूती के साथ इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। तो आप साहब, आपके ही कुछ वर्कर्स जो है वो इंडिपेंडेंट का मिशन चलाते हैं, तो ये एनसी कांग्रेस का जो ये डामाडोल खेल है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज ये है कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो करगिल का जो हमारा पार्टी था, हमारे जो कदावर यहाँ पर नेता थे, उनको हमारे साथ रहना चाहिए था। अब इन कारणों की वजह से उन्होंने एक डिसीजन लिया, जो एक सारे करगिल के हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे सलाह मशवरा कर कर उनको कॉन्फिडेंस में बिना लिए ये एक यूनिलेटरल एक तरह से मुझे लगता है डिसीजन हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। देखिए, आप जब भी, कांग्रेस एक छोटा मोटा पार्टी नहीं है, 130, 35, 40 साल पुराना पार्टी है, और कांग्रेस का अपना एक इतिहास है। जब भी हम कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, सबको सब सामने बैठकर मिलजुल कर और सबकी सहमति से सलाह मशवरा कर कर हम निर्णय पे आता है। तो इस तरह से ये करना चाहिए था, इसको इस तरह से अंजाम देना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो मुझे दुख है कि इस तरह से लोगों ने किया। सर, कौन सा कैंडिडेट आपके फाइट में है इस बार के इलेक्शन में? देखिए, जहां तक हमने महसूस किया और हमने जानने की कोशिश भी की, मैं नुब्रा गया था, चमथम जाके आ रहा हूँ, और ले में भी काफी घुमा इधर उधर करगिल के कई सारे इलाकों में मुझे मौका मिला जाने का। मैं, और इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे माफ कीजिएगा करगिल की जनता, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की हर जगह पहुंचने की, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। देखिए, माफ ज्यादा ngaka sama laptop yanches mirupin somasang jaka janga ले फाले सोमासंग जो कंपटीशन में, फिर आप दो और खिलाड़ी हैं। जनता ने शायद, जनता में लोगों पे छोड़ता हूं, और टक्कर किसके साथ है ये इस पे हम नहीं जाना चाहेंगे। हमारा फोकस ये है कि आप अपना काम करते जाओ। कौन क्या, फिर मैं उलझन में पड़ जाऊंगा, बीजेपी क्या सोच रहा है हमारे बारे में, इंडिपेंडेंट क्या सोच रहा है, अच्छा मेरा टक्कर उसके साथ है, वो क्या कर रहा है, देखो भाई वो क्या कर, नहीं, हमने उसमें घुसना ही नहीं है। हम पूरा, हमारा विजन, हमारा जो जो जो, जो तस्वीर है बिल्कुल साफ है, हमारा कदम बिल्कुल साफ है। हमने अपने कांग्रेस के विजन को आगे लेके जाना है, लोगों को समझा रहा है कांग्रेस के साथ क्यों जोड़ना चाहिए, कांग्रेस को क्यों अपना समर्थन देना चाहिए, और कांग्रेस आपके लिए आने वाले सालों में क्या कर सकता है। इन बातों को लेकर हम करगिल के लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों का हिमायत कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी तरफ झुकाव है। युवा गंभीरता से सोच रहा है, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, युवा हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बहुत सीरियसली इस बार इस इलेक्शन को सीरियसली उन्होंने लिया है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आता है, जब मैं सड़क में चल रहा हूँ, लोग मुझे खींच के ले जाते हैं, हमारे लोगों को खींच के ले जाते हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है करगिल की जनता पर, वो एक अलग तरीके से इस बार सोच रहे हैं।
नमग्याल साहब, आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ सर, उसमें सिर्फ 6 शेड्यूल को लेके सर पिछले 4 साल से चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसीयू जितने भी सर स्टेक होल्डर थे, जंतर मंतर तक भी गया, जम्मू में भी गया सर, एमएचए से भी बात किया, लेकिन आप लोगों को बहुत एक मौका था सर कि आप अपने मैनिफेस्टो में भी ये 4 मुद्दे रख सकता था। इससे लद्दाख की आवाम, आपको पता है लेह में भी बहुत सारे जो है सर वहाँ पे उसमें अनशन में भी बैठा है, तो आपको नहीं लगा सर इसमें, क्योंकि आपने इस बार सिर्फ 6 शेड्यूल को रखा, इसका क्या वजह सर? देखिए, ये जो 4 जो डिमांड हमने एपेक्स कमेटी और केडी ने रखा है सरकार के सामने, देश के सामने और हमारे सामने है, हर चीज सिलसिलेवार तरीके से होगा। मैंने अभी एक मीडिया को चैनल को कहा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इमीडिएट जो हम कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में अन्य राज्यों के लोग आकर यहाँ पर निवेश होना शुरू हो चुका है। बाहर के हमारे राज्यों के भाई बहन आकर यहाँ पर जमीन खरीदना शुरू हो चुका है। हमारे सामने एग्जाम्पल है, मिसाल है, मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहूंगा, किसी और फोरम में उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि पहले हमें लद्दाख को बचाओ। लद्दाख को कैसे बचा पाएंगे हम? लद्दाख को बचा पाएंगे जब तक यहाँ पर 6ठा शेड्यूल होगा। इमीडिएट अगर हम 6ठा शेड्यूल ला पाएंगे तो लद्दाख का पर्यावरण बचा रहेगा, लद्दाख का जमीन बचेगा, लद्दाख की नौकरियां बचेगी, क्योंकि 6ठे शेड्यूल में आप जमीन नहीं बेच सकते हो, बाहर के राज्य के लोग यहाँ पर आके जमीन नहीं खरीद सकते हो, नौकरियां जो भी निकलेगी हमारे लोगों को देना पड़ेगा, एक पेड़ नहीं कर सकते यहाँ पर, जमीन खरीदना तो दूर की बात है। तो ये बहुत जरूरी है, सबसे पहले इसको मुकम्मल करें। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक जो ऐलान किया है पूरा 140 करोड़ लोगों के सामने कि लद्दाख अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, जिसका उम्मीद अभी लगभग 60% से ज्यादा हो चुका है और पूरा देश जान चुका है कि अभी एक नैरेटिव शिफ्ट हुआ है, सरकार बदलने जा रहा है देश के अंदर। तो ऐसे हालात में लद्दाख को 6ठा शेड्यूल जो मांग है, जो दूसरा नंबर जो हमारा जो डिमांड के अंदर है, वो हमें मुकम्मल होने जा रहा है, वो हमारे सामने पहुंचने जा रहा है। उसके बाद क्या होगा? राहुल गांधी जब यहाँ पर आए थे पिछले साल, जो दौरा किया था, उन्होंने करगिल के लोगों से गुफ्तगू की, यहाँ पर आए, लोगों से मिले, लेह में गए, नुब्रा चंतक हर जगह गए, वो जांचकर देखो। सबसे जरूरी है कि लद्दाख को ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो आज लद्दाख को रखा गया है, उससे लद्दाख को बाहर निकाला जाए। हम एक तानाशाह एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में नहीं रहना चाहेंगे। Devolution of democratic powers in the hands of the people is very, very important. And we must, Ladakh should be governed by the people of Ladakh. People of Kargil, Hamid, Namgyal, Peter, लोग बैठ के करें ना, लद्दाख को आगे चलाए। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल चलाता है, डिस्ट्रिक्ट को देखता है, जिस तरह लेह का काउंसिल लेह डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, क्या आज लद्दाख के लोगों में क्षमता नहीं है? क्या लद्दाख के बच्चों में वो ताकत, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बन सके, वो यहाँ पर मिनिस्टर बन सके? तो वो बहुत जरूरी है। और हमारे बहुत सारे मिनिस्टर बने हैं पिछले सरकार के अंदर, जब हम स्टेट का हिस्सा हुआ था। तो लद्दाख शुड बी गवर्न बाय लद्दाखी पीपल। उसके लिए सबसे जरूरी है स्टेट का दर्जा। उसके लिए हम बाखूबी राहुल गांधी खुद चाहेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ लद्दाख को लेजिस्लेटिव पावर की तरफ हम बहुत जोर शोर से, जब हमारी सरकार बनेगी सेंटर में, उसको हम उठाएंगे, ले जाएंगे। नमग्याल साहब, आज आप करगिल में है सर, एक मुद्दा जो है हमारा करगिल एयरपोर्ट का, जिसपे सर 70 साल से सिर्फ सियासत हो गया। एक दिन के लिए प्राइवेट जहाज भी उतरा, दूसरे दिन गायब भी हो गया। बहुत सारे सर यहाँ पे बाहर से जो मतलब दिल्ली से भी यहाँ पे बहुत सारा है सर। अभी आप करगिल में है तो सर, क्योंकि करगिल में जहाज का बहुत जरूरी है सर, कनेक्टिविटी आपको पता है सर, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो सर इस चीज के लिए सर आप अभी करगिल में है तो सर क्या कांग्रेस इस पे कदम उठाएगा सर? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सर अभी तक कोई भी यहाँ पे एयरपोर्ट का काम भी नहीं हो सर, काम भी शुरू नहीं हो गया सर। मैं शुक्रिया आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि मैं इसमें आने वाला भी था। देखिए, आज हमारे खासकर करगिल के जो हमारे भाई बहन है, बुजुर्ग, जब वो हज की पिलग्रिम पे जाते हैं, उन्हें इतना तकलीफ का संघर्ष करना पड़ता है। माइनस टेम्परेचर में उन्हें ले आना पड़ता है, और वहां से कभी फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, तो बहुत मुश्किल एक दौर से गुजरना पड़ता है। गर्मियों के दौरान या तो श्रीनगर जाइए या जम्मू जाइए, ले आइए। तो करगिल में एक बात चली है, एक कागज चला है कि करगिल में जगह भी जो जगह है जहां पर एयरपोर्ट बननी है, वो भी तय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पेपर तो चला है, मगर इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी का हमारे मेंबर पार्लियामेंट हो, हमारे काउंसिल हो, तो बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगता है मेरा काम यह होगा कि करगिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, और मुझे लगता है इस पे सबकी सहमति होगी, सबसे पहला जो मैं काम करने जाऊंगा करगिल के निवासियों के लिए, करगिल के बाशिंदों के लिए, वो है आपका एयरपोर्ट का डिमांड। चाहे उसके लिए मुझे संसद के पटल पे उस बात को उठाने की बात हो, पूरा विद फैक्ट्स एंड फिगर, किस तरह से इन्होंने इस इंपॉर्टेंट इश्यू को आगे नहीं बढ़ाया।
दूसरी बात, चाहे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से बात करने की बात हो, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के दफ्तर में जाके बात करने की बात हो, लोग तंजीम को साथ ले जाने की बात हो, लोगों को साथ ले जाने की बात हो, पूरी जोर शोर से, ईमानदारी के साथ और पूरी मजबूती के साथ, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, करगिल का एयरपोर्ट की डिमांड को हम नहीं छोड़ेंगे। और जहां भी जाना पड़े, चाहे वो दिल्ली में, अगर नौबत यहां तक आ जाए कि करगिल के अगर इस इश्यू का और वो लोग नजरअंदाज करते हैं। अब एक बात यह है कि अगर मान लो कि बीजेपी सरकार आती है वहां पर, 1 मिनट के मान लीजिए, अगर उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, तो मैं इसको, चाहे हमें संघर्ष करना पड़े, चाहे वहां पर जंतर मंतर पे जाके जुलूस करना पड़े, करगिल की बाजार में हमें जलसा जुलूस करना पड़े, मेंबर पार्लियामेंट की कायदत में, तंजीम की कायदत में, वो भी हम करेंगे। जहां भी चिल्लाना पड़े हम चिल्लाएंगे। अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मैं सोने पे सुहागा, ये काम बहुत जोर शोर से आगे चलेगा। सर आखिर में एक क्वेश्चन है, आप पिछले 2 दिन से ग्राउंड लेवल पे करगिल में सिर्फ कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं सर, जो आम आवाम है, उनसे मिला सर, किस तरह के रिस्पॉन्स है यहाँ पे लोग सर? बिल्कुल, ये मैं फिर हमारे कांग्रेस के जो भाई बहन है, जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे कैडर है, जो हमारे रैंक एंड फाइल है करगिल के, उनसे मैंने गुफ्तगू की। और उसके अलावा हमने अलग अलग जगहों पे जाके हमने किसानों से जाके मिला। आजकल खेती बाड़ी के काम चल रहे, तो हम किसान के बीच में गए, वहां उनसे बातचीत की। जो स्टूडेंट्स से, जो सड़क पे जो बच्चे चल रहे थे, उनसे हमने रोककर उनसे बात की कि आप करगिल को कैसा दिखना चाहते हैं, आप करगिल को आगे कैसे दिखना चाहते हैं, इस इलेक्शन के बारे में आपकी क्या सोच है। दुकानदारों से मैंने बात की, टैक्सी ड्राइवरों से मैंने बात की, जो यहाँ पर सब्जियां बेचते हो, जहां पर सड़क पे चलते चलते लोगों से हमने बात की। तो लोग एक चेंज चाहता है यहाँ पर। हर समय करगिल कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव के अंदर लोगों ने काम किया। उस दबाव, उस प्रेशर से लोग बाहर निकलना चाहते हैं और एक खुली मान से, खुली ईमानदारी से एक आगे करगिल को देखना चाहते हैं। करगिल को आगे जो तरक्की के जो रास्ता है आगे ले जाना चाहते हैं, मगर उनके ऊपर कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो खुले आसमान में अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने सोच रखा है और मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला, बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलकर जुलकर, और तंजीम से भी मिला मैंने। तो आई एम गेटिंग पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द पीपल। थैंक यू सर। बहुत